Sir, please begin. Okay. Hello everyone. Good afternoon. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Digesh Shah, Assistant Professor from Parul University. Today, Electrical Department of Parul University has organized webinar on focus on industrial automation on different automation layer and industrial applications. So now I would like to introduce our guest expertise, Mr. Alok Deshmukh sir. He is currently working as a sales manager in Siemens Private Limited, Vadodara. Now, without taking your more time, I am handovering to Alok sir to deliver valuable speech. Okay. So Alok sir, you can continue. Yeah. Thank you, Digesh sir. And hello everyone. Myself Alok Deshmukh, and I am handling industrial automation and robotics portfolio for Siemens in Baroda region. Basically, I have done my BE in electrical from GTU in 2013, and since then I am working in this industrial automation field. So almost I have 7 years experience in different portfolios and different designations for particularly industrial automation. I have expertise in sales, negotiations, then some of the softwares of Excel, PowerPoint presentation, project management, and then my core expertise is in industrial automation and robotics. Basically, industrial automation and robotics is a field where everything that is manual, you convert it into automation, and where the processes are very high speed, where normal humans can not work that efficiently, we introduce the robotics. Is there any question in this? No. Okay. So basically, right now I'm going to give organization introduction of what I do and how my organization stands in the industry. So basically, Siemens is a world-known brand and world #1 industrial automation company, and we are working since 175 years in industrial automation and robotics field. We are working in 190 plus countries, and we have more than 4 lakh employees all over the globe. Basically, our HQ is in Germany, and we are working from our HQ is working from there. Our R&D team is there, production is there, and we have different locations for manufacturing plants globally. So basically, Werner von Siemens was an entrepreneur who introduced the telephonic line in 1857. So around 190 years back, he has started his career, or I would like to say, as a scientist, he started his journey. So from there now to now, we have grown into the industrial automation field. Basically, we have different segments, and Siemens is not a single company. It is a group of companies which are having more than 50 companies working for engineering excellence and manufacturing. We have different portfolios in digital industries where automation belongs, smart infrastructure where you can see the eco-friendly and carbon neutralized building infrastructure. We manufacture roads, trams, railways, as well as in electrical vehicle manufacturing, we build the electrical charges. Then our mobility is another field of area where we are working. In mobility, we are the world #1 manufacturer of trains. So whatever metro trains we are seeing in India, those are somewhere manufactured by Siemens only. Then Siemens Advanta is a company where we manufacture and support for IT and computer solutions. So like TCS, Infosys, we are also having our footprints in industrial IT. Then portfolio companies are companies which are small companies support to do the manufacturing of compressor,
hydro turbines, electrification. So all these companies are portfolio companies. And one of the major field we are working is Siemens Healthineers, where we manufacture ECG machines, MRI machines, then different health groups and their machines. So basically, we are the company which works in every field of industrial automation. Okay. So this is our market presence and different processes where we involve for betterment of the society. So now I would like to begin the what is industrial automation and how it has started. Basically, everything starts with the innovation and R&D. So we must be knowing that it is not a single point where we right now has arrived, but it is a whole journey. The way baby is born, then he grows up, becomes teen, and then adult, and then he reach to his premature stage. The same way, industrial automation has all the revolution in itself. So basically, we all know that previously all the things are manual. हम कभी भी कहीं पर भी जाते हैं तो हर चीज मैन्युअल होती है. तो वो तो अभी ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन हुआ उसकी वजह से ऑलमोस्ट हर चीज ऑटोमाइज हो गई है. बट इफ वी लुक बैक इन द पास्ट, जब हमारे पेरेंट्स थे या उनके पेरेंट्स थे, तो हाउ दे डू द थिंग्स विच वी आर राइट नाउ डूइंग वेरी इफिशिएंट. हर बार हमको सुनाते थे कि भाई हम भी पेड़ के नीचे लाइट के नीचे बैठ के पढ़े, बट वी डोंट हैव दैट luxury. So we are right now sitting in the AC room and doing presentation online. Right? यही चीज उनको सीखने के लिए कितने किलोमीटर्स चलने पड़ते हैं. So basically every stage has a progress, every stage has a different difficulties, and then we introduce new technologies to overcome those difficulties. So same way, basically industrial revolution is a revolution which begins into 80 before 1800, like 70 50 और 70 60. उस टाइम पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था स्टीम और वाटर से चलने वाले मशीनरीज का. बेसिकली दे वर द मैकेनिकल प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, दोस आर क्रिएटिंग स्टीम आउट ऑफ वाटर. जैसे स्टीम टर्बाइंस होते हैं, रेलवे इंजिन होते हैं, तो उनका इनोवेशन ही 1800 से पहले हुआ, आई गेस 750 और 70 60s में. फिर वो जर्नी धीरे धीरे बढ़ी. देन अदर मैन्युफैक्चरिंग R&Ds has happened, and in late 80s we have introduced conveyor belt. जो हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या कहीं पर भी सीमेंट फैक्ट्री या कोई भी जगह पे कन्वेयर जो हम मैन्युफैक्चरिंग या नॉर्मल इंडस्ट्रीज में देखते हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन इज 1870 में हुआ. So before 1870 there was no manufacturing of conveyor, and after the introduction of conveyor, we can say that the real industrial revolution has begun. दुनिया में कहीं पे कोई भी प्रोडक्ट ऑटोमेटिक नहीं बनती थी, उसके लिए ह्यूमंस और लेबर्स की जरूरत पड़ती थी, और वो पूरा दिन महीनों तक काम करके कोई एक छोटी सी प्रोडक्ट जनरेट करते थे. So basically after 1870s this manufacturing industry has started its teenage years. So after 1870s to 1900 the revolution has picked up. उसके बाद फर्स्ट कार इंट्रोड्यूस हुई कि जो फोर्ड ने पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप की थी, जिसमें डिफरेंट स्टेशंस पे डिफरेंट प्रोसेसेस होते थे, लाइक पेंट प्रोसेस, असेंबली प्रोसेस, कार के ग्लास लगना, उनके व्हील लगना. सो ऑल दिस प्रोसेस वर नॉट देयर बिफोर 1970s. सो उसके पहले तो ऐसा कुछ कार जैसी चीज ही नहीं थी. उस टाइम पे सिर्फ स्टीम टर्बाइंस थे कि जो टर्बाइंस में से स्टीम निकालते थे वाटर में से. सो इन द फर्स्ट 10 years of 1900 this has picked up. So 1900 से लेके फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसमें डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग हुए, मशीन्स की जरूरत पड़ी, लोगों को हर चीज
फास्ट चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ था। सो सबकी ज़रूरियात चेंज हुई और उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री भी चेंज हुई। देन इन 1970s the first programmable logic controller और वी कैन से कंट्रोलर, हम जो अभी 8085 और 8086 पढ़ते हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन 1970s और 1960s के बीच में मैन्युफैक्चर हुआ। सो जब कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको हम वी कैन से इट इज अ ब्रेक थ्रू, बिकॉज ट्रांजिस्टर इंडस्ट्रीज उसके बाद डेवलप हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसके बाद ही डेवलप हुआ। बिफोर दैट 1970s there were no any electronic parts. There were mostly all parts were numerical relays or mechanically driven parts. So 1970s के बाद जब ट्रांजिस्टर का इनोवेशन हुआ, उसके बाद ये जर्नी बहुत ही फास्ट हो गई। सो बेसिकली वी कैन से दैट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जन्म ही 1970s में हुआ। उसके बाद इंडस्ट्री ग्रो होती गई 2000 2020 22 में हम पहुंच गए, और नाउ वी हैव दैट लग्जरी टू हैव ऑल द सेमीकंडक्टर इन आवर हैंड। जब हम हाथ में मोबाइल लेके बैठते हैं तो उसमें वो सारी ट्रांजिस्टर चिप्स, सारे कंट्रोलर्स, सारे स्क्रीन्स, फिर हमारा मोबाइल खुद एज अ रिसीवर ट्रांसमीटर वर्क करता है, तो वी हैव वाईफाई ऑल्सो। सो 2022 तक ये 25-50 सालों में ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री ऑलवेज ग्रोन एक्सपोनेंशियली। सो दिस इज द होल जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो बेसिकली इसके ऊपर ही हम डिपेंड करेंगे और हमारा ग्रोथ डिसाइड होगा कि हम अभी किस पॉइंट पे खड़े। सो नाउ द फ्यूचर इंडस्ट्री इज ऑल्सो देयर। अब सब चीजें तो बन गई है, तो उनका कनेक्शन भी होना चाहिए। जैसे हम स्मार्ट होम्स देखते हैं कि हमारा टीवी, हमारा जो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन है, अमेजोन एप्लीकेशन है, वो टीवी में भी चलता है, हमारे आईपैड में भी चलता है, मोबाइल में भी चलता है, और कोई और तीसरे इंस्ट्रूमेंट पर भी चलता है। द सेम वे अवर हाउसेस आर ऑल्सो गेट कनेक्टेड। हम वाईफाई से पूरा घर कनेक्ट करते हैं, कहीं पे बैठे बैठे हम हमारे रूम का एसी भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑल दिस आर द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सो which we are calling it industry 4.0. Hello, is there any query or questions regarding this? Hello, Dikesh, I am audible? Yes, yes. Yeah, Audible. okay. So can I go further? Yes. Yeah. So basically how the things get manufactured, हमको पहले एज ए इंजीनियर ये समझना होगा कि चीजें बनती कहाँ हैं, वो कौन से स्टेजेस पे जाती है, और बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आती है वो कौन से फेजेस में जाके उनका जर्नी रहता है। सो बेसिकली सबसे पहले होता है R&D, विच इज द फर्स्ट फेज। सो बेसिकली कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कुछ डेटा एनालिस्ट होते हैं, वो मार्केट में जाके कोई भी चीज का एनालिसिस करते हैं, या फिर कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करते हैं। जैसे हमने शोज देखा, एंटरप्रेन्योर्स का शो आ रहा था, तो जिसमें अभी बहुत ही फेमस हुआ था, तो उसमें भी बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव फेस सम चैलेंजेस और सम डिफिकल्टीज टू डू द थिंग्स। देन उसके बाद हम सोचते हैं कि इसका कैसा सॉल्यूशन लाने जाए, फिर हम आसपास में देखते हैं कि क्या रिसोर्सेस है और उनमें से हम कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं। सो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स और द पीपल दोज आर डूइंग R&D, वो कोई चीज का सॉल्यूशन लाने का ट्राई करते हैं। सो बेसिकली देयर इज अ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन रिसर्च और डेवलपमेंट से हम फाइंड करेंगे। सो मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ एनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज R&D। फिर उसके बाद हमको एक बार पता चल गया कि ये चीज का ये सॉल्यूशन हो सकता है, सो वी मैन्युफैक्चर सम सर्विसेज और प्रोडक्ट डिजाइन। बेसिकली पहले टैक्सी सर्विसेज थी, तो प्रॉब्लम बहुत होते थे कि रिक्शा पकड़ना पड़ता था, बस पकड़ना पड़ता था, तो उसके लिए इनोवेशन हुआ एंड वी हैव इंट्रोड्यूस द ओला।
So basically Ola is a product design. It is a service design, but we can call it a solution. और उसी तरीके से हम फोन पे बात नहीं कर सकते थे, हमको रिमोट टॉकिंग के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए थी. सो वी हैव इंट्रोड्यूस द मोबाइल. सो मोबाइल इज अ प्रोडक्ट विच नीड्स अ प्रोडक्ट डिजाइन, एंड Ola is a service which need service design, which needs the infrastructure of a service. So हमेशा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज का सॉल्यूशन दो तरीके से आता है, आइदर सर्विस पे और अ प्रोडक्ट. So basically in manufacturing and engineering industries we mostly focus on the product design. So first phase after product design, कोई प्रोडक्ट फिक्स होने के बाद हम उसका प्लानिंग करते हैं कि मार्केट में जाके हम उसका वैल्यू चेक करते हैं कि कितने लोगों को उसकी जरूरत है, उसका कैसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज में जाते हैं, उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं. सो बेसिकली प्रोडक्शन प्लानिंग इज देयर. सो ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हम देख रहे हैं जो मार्केट में है, रिलायंस है, टाटा है, सो ये सारी प्रोडक्शन के बेसिस पे चलती है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं. बेसिकली प्रोडक्शन प्लानिंग नीड्स टू बी देयर. उसके बाद आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. हमने प्रोडक्शन प्लानिंग तो कर लिया, लेकिन अब इंजीनियरिंग करना पड़ेगा कि वो चीजें कैसे हम बेहतर बना सकते हैं. शायद हमने वो एक पिक्चर या मीम पढ़ा होगा कि पहले 1940s में 1 KB के लिए इतना बड़ा रूम लगता था स्टोरेज के लिए, मेमोरी के लिए, जबकि वही चीज हम इतने छोटे से अपने उंगलियों पे 64 GB, अब तो टीबी में आ गया है, तो 1 TB की हार्ड डिस्क भी रख सकते. सो बेसिकली ये सब इंजीनियरिंग के बाद ऑप्टिमाइज हुआ है. सो बेसिकली वी नीड अ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टू मेक द प्रोडक्ट्स बेटर एंड बेटर. देन देयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें चीजें कैसी प्रोड्यूस होती है, उनको कैसे इफिशिएंट बनाया जाता है. पहले अमेजोन पे जो चीज 10 दिन में मिलती थी, वो अमेजोन अब 1 दिन में भी आपको सर्विस दे रहा है. सो बेसिकली दे आर द ऑप्टिमाइजिंग ऑफ देयर वैल्यू चेन. सो प्रोडक्शन का वहां पे आता है. और सर्विसेज, तो सर्विस में हम कैसे बेहतर दे सकते हैं. हम अगर किसी को कॉल करते हैं कि हमको हमारा टीवी फेलियर हुआ है या वॉशिंग मशीन फेलियर हुआ है, तो हाउ फास्ट दे गिव द सर्विसेज. सो दिस 5 स्टेजेस आर कॉमन इन एनी इंडस्ट्रीज. आप इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, केमिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, टेलीकम्युनिकेशन के हो, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का लाइफ साइकिल इन 5 चीजों से ही गुजरता है. सो दिस इज द बेसिकली फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट और आइडिया, इमेजिनेशन टू द रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन. सो जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तब आपको कोई पूछेगा नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल से हो, ओके दिस इज योर बैकग्राउंड, कि आपने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज में आपने एक्सपर्टाइज की है. बट बेसिकली यू विल वर्क इन ऑल दिस 5 इंडस्ट्रीज. शायद आप R&D में जाओ, शायद आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जाओ, शायद आप प्लानिंग में जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, प्रोडक्शन में जाओ या सर्विस में जाओ. बट ऑल दिस 5 pillars are the pillars of industries. Okay. Is there any question regarding this? Okay. So I am going further now. Basically इंडस्ट्री में जब आप इंट्रोड्यूस होते हो, सो देयर इज अ वन बिग फैक्ट्री यू सी, या फिर आप कोई केमिकल प्रोसेस प्लांट में जाते हो, या कार मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो, या अगर रिन्यूएबल एनर्जी है तो आप विंड मिल्स जहाँ पे इंस्टॉल होती है वो देखने जाते हो, या फिर आप कोई डैम में जाते हो जहाँ पे एनर्जी का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है. बेसिकली वी प्रोड्यूस द एनर्जी. सो उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और प्रोसेस इंडस्ट्री, तो वहां पे कौन से लेवल के इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लेयर्स होते हैं. बेसिकली कहीं पे कोई चीज बन रही है, लेट्स से आई एम टेकिंग द केमिकल इंडस्ट्रीज एग्जांपल. जामनगर में कहीं पे कोई ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो अब उस ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग को हमको प्लांट में लाना है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस करने हैं, और उसके बाद उसको मार्केट में हमको इंट्रोड्यूस करना है. सो बेसिकली ये पूरा जो चेन होता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस
हम ऑटोमाइजेशन में कौन से लेवल पे, कौन से हायरार्की में डिफाइन करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको कोई सब्जेक्ट होगा पीएलसी या स्काडा का, या फिर आप इसके पहले सेम में या आगे की ईयर में पढ़े होंगे कि देयर इज अ ट्रिपल वीएफ, वीवीवीएफ, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स. So basically, what you learn are the basics or the proper depth, deep engineering of the product. But real world में आप जब जाते हो तब आपको जो बुक्स में दिखाया गया वैसा कोई डायग्राम नहीं दिखता. There are the final products. So ये सारे प्रोडक्ट्स हम किस जगह पे इंट्रोड्यूस करते हैं, उनका पूरा हायरार्की क्या होता है, और ऑटोमेशन में वो क्यों इम्पोर्टेंट है. This picture is showing, or this pyramid is showing all those products. ठीक है. सो सबसे बेसिकली बेस लेवल पे आते हैं आपके सेंसर्स, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटेशन लेयर्स बोलते हैं. आपको इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट भी आया होगा. सो वो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने प्रेशर ट्रांसमीटर पढ़ा होगा. बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन आर टेकिंग डेटा फ्रॉम द फील्ड पे जो इंस्ट्रूमेंट या जो प्रॉपर्टीज, जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनके डेटा को सेंसर्स सेंस करते हैं. तो कहाँ पे कुछ प्रेशर चेंजेस हो रहा है, फ्लो चेंज हो रहा है, कहीं पे हीट ज्यादा या कम हो रही है, कहीं पे टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, कहीं पे कोई फैन या पंप का या कंप्रेसर का स्पीड बढ़ रहा है, या फिर कोई चीज पे बहुत टॉर्क जनरेट हो रहा है. सो ये सारी प्रॉपर्टीज है जो आप खुद जाके चेक नहीं कर सकते. सो बेसिकली देर आर सेंसर्स, फ्लो सेंसर, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर्स, ह्यूमिडिटी सेंसर्स, टॉर्क एंड स्पीड सेंसर्स. वैसे डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स होते हैं जो फील्ड लेवल पे होते हुए प्रोसेस को फील करके, उनको सेंस करके आपको कोई पर्टिकुलर डिजिटल या एनालॉग फॉर्म में सिग्नल्स जनरेट करते हैं. अब कोई 30 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर या कहीं पे प्लांट में कोई चीजें, यूनिट्स चेंज हो रहे हैं प्रोसेस के. सो देर आर मल्टीपल मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस हैपनिंग पर आवर या पर सेकंड. सो वो हर चीज सेंस करना पॉसिबल नहीं होता. दैट्स व्हाई ऑन द फील्ड लेवल देर आर सेंसर्स. उन सेंसर्स में से जो डेटा आता है उनको जो कंट्रोल करता है, कि जो उनको पर्टिकुलरली पर टाइम इंटरवल ऑन या ऑफ करता है, या फिर उनका डेटा गैदर करके उनको सिक्वेंशियली क्या प्रोसेस करने हैं, वो सारे प्रोसेस का लॉजिक या फिर हम ब्रेन बोल सकते हैं, दैट इज पीएलसी, which is a programmable logical controller, which is the second layer of industrial automation. So basically PLC वो उसको हम इमेजिन कर सकते हैं like our brain, the way we are having 6 senses, like we can feel it, we can see it, we can hear it, we can smell it. तो ये सारे सेंसर्स हुए. Then there is the introduction of PLC, which is our brain. अब कोई चीज आप पकड़ते हो तो वो हॉट है या कोल्ड है, तो वो सिर्फ पकड़ने से नहीं पता चलता. ब्रेन हैज टू गिव सम, फर्स्ट सेंसेस हैज गिव टू सम सिग्नल्स, और उसके हिसाब से ब्रेन प्रोसेस करके आपको बताता है कि नहीं ये चीजें गर्म है, ये ठंडी है, या फिर ये खुला हुआ है या बंद हुआ है. सो ऑल दोस सिग्नल्स आर जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड बाय आवर माइंड. उसके बाद जब अपना माइंड को पता चलता है कि ठीक है ये हॉट है, तो आपको उसको, ठीक है कुछ पकड़ा हुआ है, इट इज वेरी हॉट और कोल्ड, देन वी हैव टू ड्रॉप इट, राइट, अदरवाइज इट विल हर्ट. सो वो जो पूरा प्रोसेस होके उसने जो कमांड दिया, दैट इज द पीएलसी. बेसिकली पीएलसी हैज इनपुट्स एंड आउटपुट्स. सो एंड इनपुट्स फील्ड से आते हैं और आउटपुट होते हैं वो वापस फील्ड में जाके कोई एक पर्टिकुलर कोई एक्शन को इनिशिएट करते हैं. लेट्स से कि फील्ड में कहीं पे बहुत टेम्परेचर बढ़ गया है बॉयलर का, तो सेंसर्स उसको सेंस करेगा, पीएलसी उसको बताएगा कि भाई ठीक है 80 डिग्री के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर चला गया तो वो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर देगा. सो ऑल द हीट विल गेट will come out from the exhaust valve and the temperature will go into its original state. So basically ये जो प्रोसेस डिफाइन करना है, लॉजिक बिल्डिंग होता है, वो सारा पीएलसी में होता है. So on the second level it is a PLC. Basically PLCs हम इंस्टॉल करते हैं पैनल्स में.
जो आप इंडस्ट्री में बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल पैनल्स देखते हो, वो पैनल्स में बेसिकली पीएलसी इंट्रोड्यूस होते हैं। वहां पे उनको डिप्लॉय किया जाता है और उनका प्रोग्रामिंग लगता है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में आप सी कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग होता है, सी में करते हो आप, या जावा में करते हो, या फिर पीएचपी में करते हो, वैसे ही पीएलसी का खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो बीट्स और बाइट्स में डिवाइड होता है। तो बेसिकली पीएलसी अंडरस्टैंड ओनली 1 and 0। तो उसका जो पूरा प्रोग्रामिंग लॉजिक होता है, जिसको हम एफडीबी, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, या लेडर लॉजिक, या फिर सिक्वेंशियल एसक्यूएल में हम जो प्रोग्राम करते हैं, तो ऑल दिस आर लैंग्वेजेस ऑफ पीएलसी। और वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए वो लैंग्वेजेस यूज होते हैं। ओके, so this is the PLC, and after PLC there is a HMI, which is a human machine interface. Basically HMI is like our screen, like a TV screen or mobile screen or any other screen. So basically ये जो processes हो रहा है, जो फील्ड लेवल पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन ने फील किया, उसके रिस्पॉन्स में पीएलसी ने जो कमांड दिया है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, सो वो हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो वो विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास एचएमआई का ऑप्शन होता है। सो कोई भी पैनल पे आप देखोगे तो एक स्क्रीन लगा होगा, या कहीं पे मॉनिटरिंग रूम में एक स्क्रीन लगा होगा। सो बेसिकली इट इज अ एचएमआई। सो एचएमआई shows us the different parameters, those or values and processes which are happening into the PLC or onto the field level. So basically to visualize all these things which we cannot see, we introduce the human machine interface, HMI. So PLC and HMI are always combined, even though they are different products, but they are always introduced as PLC HMI only. So if you are taking PLC, obviously you want to see the things which are happening into the field. So PLC and HMI are always together. Then उसके बाद आता है control level, which is a SCADA level, and we call it a third level of automation pyramid. So basically SCADA is a supervisory control data acquisition, और SCADA is a software. Basically जिस तरीके से हमारे मोबाइल में एंड्रॉइड ओएस आता है, आईपैड में या एप्पल में मैक ओएस आता है, लिनक्स ओएस आता है। सो बेसिकली आप जो भी प्रोसेसेस लैपटॉप में करते हो, उसका कोई विजुअलाइजेशन होना चाहिए। जैसे एचएमआई में विजुअलाइजेशन होता है, वैसे ही विजुअलाइजेशन, बट ऑन अ हायर लेवल। जहाँ पे आपको एक या दो पैनल मॉनिटरिंग करते हैं, तो वहां पे आप ऑब्वियसली एचएमआई लगाओगे। बट जहाँ पे आपको पूरा प्लांट या पूरा प्रोसेस या पूरा का पूरा एक असेंबली, मशीन असेंबली चेक करना है, वहां पे SCADA का इंट्रोडक्शन होता है। सो आफ्टर HMI देयर इज अनदर लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन विच इज अ SCADA. SCADA बेसिकली इंट्रोड्यूस होता है लैपटॉप्स में, पीसीस में और इंडस्ट्रियल ग्रेड के कंप्यूटर्स में, जहाँ पे एक बड़ा मॉनिटरिंग स्टेशन होता है, और वहाँ पे जो इंजीनियर्स होते हैं वो बैठ के पूरा प्लांट या पूरा प्रोसेस या पूरी असेंबली लाइन विजुअलाइज या देख सकते हैं। दे कैन सी द प्रोसेसेस ओवर देयर। सो उसमें हर चीज इंट्रोड्यूस हो सकती है। उसमें कैमरा इंट्रोड्यूस हो सकता है, बड़े बड़े RFID या वाईफाई लेवल के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। सो ऑल दिस गेट्स connected in SCADA. So SCADA is like a visualization station where you are seeing, जैसे हम लोग कहीं पे क्रिकेट चल रहा होता है तो हम कहीं पे बैठ के उसको विजुअलाइज करते हैं, even though we are not there, but we are seeing that what is happening on the field. So that portals or that window is created by SCADA. तो SCADA में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन प्रोसेस कितने डेटा उसमें इन्वॉल्व है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके ऊपर पे से SCADA का साइज डिसाइड होता है. So SCADA is basically the way we are having t-shirts XL, L, M, the same way we are having SCADA of tags, different multiple tags. So this is the third level of SCADA, and all these three layers are, we can call it a field or and control level. Basically ये फील्ड पे इंट्रोड्यूस होते हैं, वहां पे पैनल्स डिप्लॉय होते हैं, SCADA भी डिप्लॉय होते हैं, सेंसर्स भी डिप्लॉय होते हैं. सो मोस्टली दिस आर इनटू फैक्ट्रीज.
but when it comes to the another level, which call it a management level. So management level is a third, second and first layers of automation pyramid, जहाँ पे कोई भी चीज फील्ड से रिलेटेड नहीं है, but it is connected to the field. So basically MES is a second layer of automation pyramid, and MES is a manufacturing execution system. अब कोई चीज कहीं पे कोई प्रोसेस बन रहा है, लेट्स से कि अमूल की मिल्क फैक्ट्री में मिल्क प्रोसेस हो रहा है, डिफरेंट होमोजेनाइजर्स लगे हुए, वाटर के जेट्स लगे हुए, रिफाइनिंग्स लगे हुए, प्रेशराइजेशन सिस्टम्स लगे हुए, तो वो सारे सिस्टम्स का पूरे प्लांट लेवल पे कोई एक एग्जीक्यूशन सिस्टम्स होता है. तो वो एग्जीक्यूशन सिस्टम पूरे प्लांट में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको मॉनिटर करता है, उनको ट्रेस करता है, उनको कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है, और उनके ऊपर से वो डिसाइड करता है कि कितना रॉ मटेरियल इन हुआ है, उसके ऊपर से कितनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुई है और कितना आउटपुट निकला है. सो बेसिकली MES इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्काडा. अगर कोई एक प्रोसेस में कहीं पे कोई स्काडा लगा हुआ है, दूसरे प्लांट में दूसरा स्काडा लगा हुआ है, तो एक MES विल बी इंस्टॉल्ड ऑन अ वेरी हाई लेवल ऑफ हायरार्की, where different production engineers can see कि कितना रॉ मटेरियल इन हुआ है, उसमें से कितना वेस्टेज निकला हुआ है, कितना रिजेक्ट मटेरियल हुआ है, उसमें से कितना पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे राइट है या रॉन्ग है, और उसमें से कितना रियल वर्ल्ड में या जहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट पहुंचाना है तो उसके लिए कितना उसका प्रोडक्शन आउटपुट निकला है. सो बेसिकली ऑल दिस थिंग्स और द parameters of manufacturing and executions are into MES. So basically manufacturing execution system is called MES. So is there question till now from anyone? Okay, so I am going further now. So MES के ऊपर का लेयर है PLM. Basically right now in the industry MES and PLM are both combined now. There is a hybrid system where the second layer and the third layers get merged, and previously in 2000 there was a PLM, but now PLM and MES both are combined. So PLM is a product life cycle management. जो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में दिखाया था कि कैसे एक प्रोडक्ट का R&D से के लेके सर्विस तक का जो पूरा का पूरा उसका पाथ रहता है, वो पूरा का पूरा पाथ विजुअलाइज करने के लिए या फिर वो जो सारा डेटा है उसको कंबाइन करके उसको फील्ड में इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए, अगर कोई प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर्ड की हुई और उसके डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, जैसे मोबाइल में अपग्रेड्स आते हैं कि एंड्रॉइड 4 था, 4 के बाद 5 आया, 5.1 आया, 6 आया, द वे विंडोज हैज गॉट अपडेटेड. तो वो डिसाइड कैसे होता है, एक बार आपने कोई प्रोडक्ट बना दी, सर्विस बना दी, तो उसको अपग्रेड कैसे करना है, उसका कोई मेजरमेंट होना चाहिए कि हमने जो इंट्रोड्यूस किया, जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसमें भी हर बार अपडेट्स आता है. तो दोस आर द एप्लीकेशन अपडेट. बट अगर कोई प्रोडक्ट बनाई हुई विच इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, लेट्स से देयर इज अ लैपटॉप और देयर इज अ शूज और मोबाइल, तो वो चीजें वो तो एक बार डिप्लॉय हो गई मार्केट में, तो उनको किस तरीके से उसकी पूरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैनेज करना है और उसको कैसे बेटर बनाना है, तो वो पूरी सारी चीजें डिजाइनिंग से लेके एग्जीक्यूशन सर्विस तक की चीजें होती है. Those are introduced into product life cycle management. It is just a one word for it, but product life cycle management has many areas and many softwares combination. So R&D लेवल पे कोई प्रोडक्ट रिलेटेड अपडेट्स हो रहा है तो वो भी PLM में इंट्रोड्यूस होगा, कोई प्रोडक्शन लेवल पे हो रहा है वो भी इंट्रोड्यूस होगा,
कोई क्वालिटी चेक और क्वालिटी एनालिसिस लेवल पे होगा, वो भी होगा. सो ऑल दिस डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट phase of any product's life cycles gets introduced into PLM. So PLM is a product life cycle management, and it deploys on the entire life cycle of any product from R&D to service. ये सारे उसके डिफरेंट फेज होते हैं, उसके ऊपर PLM जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो उनके ऊपर काम करता है और उनके इनपुट और आउटपुट ऊपर से नेक्स्ट प्रोडक्ट का डिजाइन या इम्प्रूवमेंट डिसाइड होता है. So basically PLM is the topmost layer of production. So basically ये सारी चीजें और ये सारे layers introduce होते हैं factories में. So the way SCADA is on plant level, PLC and HMI are on mid level of field and control level, and IO sensors are on field level. PLM is always introduced on the factory level or R&D level. And after PLM, there is a ERP. ERP is basically PLM's bigger picture, which are deployed in a very high level of management. कि जहाँ पे टॉप लेवल के CEOs और डायरेक्टर्स और R&D हेड्स बैठते हैं, उस लेवल पे ERP का इंट्रोडक्शन होता है. बेसिकली ERP इज अ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. पूरे अगर रिलायंस के पास 10 प्लांट्स है या डिफरेंट 100 प्लांट्स है, अगर टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप में सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है. तो वैसे उनके पास केमिकल है, IT रिलेटेड है, देन टाटा स्टील है. तो उन लोगों के हर एक के डिफरेंट फैक्ट्रीज होते हैं. तो हर फैक्ट्री इतने सारे सभी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करना, उनको उनका सब कॉम्बिनेशन देखना, तो उसके लिए बेसिकली ERP सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है. तो पूरे टाटा मोटर्स के जितने भी प्लांट्स है, उन सभी के लिए एक ही ERP होगा. उनके जितने स्टील प्लांट्स है, उनको कॉम्बिनेशन करके उनके लिए कॉमन ERP होगा. ERP अगर आपने सुना है तो ये जो सिंबल है SAP करके, so SAP is the one of the biggest name in ERP systems. Basically ERP में जितने भी प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा होते हैं, जितने प्रोडक्शन लेवल के PLM सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे कंबाइंड होते हैं ERP में. So basically PLMs of many discipline, PLM of different products, factories, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ ग्लोबल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होता है, बट PLM लेट्स से कि कोई हमारी फैक्ट्री जर्मनी में है, दूसरी फैक्ट्री हमारी स्विट्जरलैंड में है, तीसरी इंडिया में और चौथी अफ्रीका में. तो इन चारों का पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जो कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं, उसके डिसीजंस लेते हैं, तो वो मैनेजमेंट डिसीजंस ERP के बेसिस पे लिए जाते हैं. So while you people will go into the manufacturing unit or into industry, you will come to know that how the ERP works. So basically ये 3 layers जब आप कंपनी में इंट्रोड्यूस होते हो, तो उसके 10-15 साल बाद आप उस लेवल पे पहुंचते हैं जब आपको MES, PLM और ERP का इंट्रोडक्शन होता है. अदरवाइज in initial years of your engineering or introduction to industries, you always come across this SCADA, PLC and IO sensors. So जो लोग ऑटोमेशन में खुद का करियर सोच रहे हैं, उनके लिए ये पिरामिड इज लाइक अ होली बुक, कि जहाँ पे आपको हर चीज में हर टाइम ये सारा इंट्रोडक्शन होने वाला है. राइट. सो is there any question regarding this or queries regarding this automation layers? दिगेश सर. Yes, sir. अरे यार, कोई लड़के बोल ही नहीं रही है, क्या हुआ है? सब शनिवार के मूड में है क्या? Question नहीं होगा सर. बिकॉज कुछ इंटरेक्शन होगा तो और मजा आएगा उनको, ऐसा है. वरना फिर बॉम्बार्डिंग ही लगेगा.
Okay, so can I move forward? Yes. Yeah. Okay, thanks. So अभी तक तो ऑटोमेशन जो इंट्रोड्यूस हुआ है ईआरपी लेवल तक का, वो ऑलरेडी स्टेबल है मार्केट में. यानी all the industries are using all these pyramids. Basically, this is the whole life journey of automation. So automation के different layers, उनका introduction फैक्ट्री में कहाँ पे वो यूज होते हैं, प्रोसेस में कहाँ यूज होते हैं. This pyramid is everything. We can call it a कुंडली, कि ऑटोमेशन की जो कुंडली है वो इतने में ही घूमने वाली है. ओके, सो इसके बाद फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि अब ERP वाज इंट्रोड्यूस्ड आई गेस इन 1999 और इन द स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ 2000. सो 2000 से लेके अभी तक सबने ERP यूज कर लिया. उसमें सब डिफरेंट लेयर्स के अपग्रेड्स भी आ गए. सो ERP इज नाउ all the industry, all the automation industry has reached at certain level of saturation point. Okay, so now what is the future? जब हम ऑटोमेशन में जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो आप 8085 माइक्रो कंट्रोलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, that was invented in 1970s 60. तो उसके बाद तो कितने सारे प्रोसेसर्स चेंज हो गए. एटम आया, उसके बाद इंटेल आया, इंटेल में i3 i5 i7, नाउ i11. सो नाउ व्हाट इज फर्दर? द सेम वे इन ऑटोमेशन आल्सो देयर इज द न्यू पॉसिबिलिटी. अभी तो गुजरात में और अपने इंडिया में वो एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे ऑटोमेशन को एज अ सब पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंसीडर होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल और फिर कंप्यूटर या आईटी का कोई सब पार्ट कंसीडर होता है. बेसिकली ऑटोमेशन इज अ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बट बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक हैज different applications, the same electronics application has got introduced into industry. So हम जो PLC देखते हैं, सेंसर देखते हैं, SCADA सिस्टम, ERP एंड वो तो IT रिलेटेड है, but SCADA, PLC, HMI and IO sensor, basically all these three are mainly areas or expertise of instrumentation in combination with electronics. बेसिकली इलेक्ट्रिकल में ये सारा इंट्रोडक्शन नहीं होता है, because electrical is mostly into motor and generators and power manufacturing and generation. So this field is a core electrical field. But now the future, when you go into the market or when you got placed into the factory services, so electrical के बंदे को या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ऑटोमेशन में ही काम करना होता है मोस्टली, बिकॉज नाउ एवरीथिंग हैज डेवलप्ड इनटू ऑटोमेशन. हर चीज ऑटोमेट हो गई है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ऑटोमेशन में ही काम करना पड़ता है मोस्टली, या फिर वो कोई भी लेवल पे काम करते हैं, दैट इट बी मैन्युफैक्चरिंग, QA QC, लेकिन उनको ऑटोमेशन रिलेटेड फील्ड में ही, उसके इकोसिस्टम में ही काम करना पड़ता है. सो द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिकल इज नाउ ऑटोमेशन, and now the future of automation is cloud. So basically MES, PLM, ERP ये तीनों इंट्रोड्यूस होते हैं क्लाउड्स में. जो हम कंप्यूटर IT में जो वर्ड सुनते हैं, ब्लॉकचेन होता है, अभी तो क्रिप्टो करेंसी आया है, क्लाउड डेटा बैकअप, देन एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर विजन सिस्टम, और ये सारा जो इंट्रोडक्शन हो रहा है वो आज से 5 साल 10 साल पहले नहीं था, बट वो वहां पे हमारे पर्सनल लेवल पे था. बट नाउ ऑल दिस थिंग्स आर आल्सो गेट इंट्रोड्यूस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इन दैट एनवायरमेंट. सो आज कोई भी कंपनी के पास उसका खुद का क्लाउड होता है, उसके खुद के मशीन लर्निंग्स होते हैं, उसके खुद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, कि जो उनको कोई ना कोई तरीके से डेटा का एनालिसिस करके रिजल्ट्स देते हैं. So the future of automation is now already has begun in 2010, but we can say that it is now at its beginning years. Okay, so the next phase of this slide is also future of automation. So this is the future of automation. Basically, all the sensors, HMI, SCADA, all these things are now one kind of solution to the industry.
सो एक बार आपके पास प्रोडक्ट आ गई तो वो प्रोडक्ट को मार्केट में रीच करवाने के लिए, उसको बेटर और स्मार्ट बनाने के लिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग फास्ट करने के लिए, पहले ऐसा होता था कि हम, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, पहले ऐसा होता था कि अगर हमारे फादर्स और फोर फादर्स कहीं पे जाते थे तो उनको शॉप में गिन के 4 या 5 कलर के कपड़े मिलते थे, और वो भी प्लेन होते थे, उसमें इतना सारा कोई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं होता था। जबकि हमारे फादर जब शॉप्स में गए और उनको कोई कपड़े लेने होते थे तो उनके लिए ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस और वैसे ऑप्शन होते थे, बट उनके पास कस्टमाइजेशन जैसा कोई नहीं था। यानी व्हाइट है तो व्हाइट में 1 या 2 स्ट्रिप्स या ऐसा कुछ मिलेंगे, अगर शूज लेने जाओ तो उसमें इतने ही साइज, कोई स्नीकर्स या स्पोर्ट्स या फिर कैजुअल या लग्जरी टाइप के कोई ऑप्शंस ही नहीं होते थे। जबकि हम जिस एनवायरनमेंट में, हम जिस फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं वहां पे हमको हर चीज में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। हमको अगर हमारी सिंपल मोबाइल का कवर लेना है तो उसमें कस्टमाइजेशन चाहिए, हमको अगर शूज लेना है तो उसमें कस्टमाइजेशन चाहिए, हमको कोई बैग लेना है, कार लेनी है, उसमें मेरे कार में तो हर सीट से लेके हर चीज कस्टमाइज हो सकती। So basically customization is a added things which got introduced in recent years. तो इन सब चीज के लिए अगर आप कहीं पे गए और आपने ये चीज तो हर किसी स्टूडेंट ने की होगी कि उनको मोबाइल कवर कस्टमाइज चाहिए। इफ देयर आर गर्ल्स सो दे हैव आस्क्ड फॉर द सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजाइन, या फिर उसमें कोई स्विम बॉल से ऐसा कुछ यूज करते होंगे। अगर बॉयज होंगे तो वो कोई क्रिकेटर का करते होंगे, या फिर खुद का नाम प्रिंट कराते होंगे, या फिर कोई कलर, या फिर कोई फुटबॉल स्टार या किसी को फैन फॉलोइंग होगा तो उनके जैसा मोबाइल कवर उनको चाहिए होगा। अब आप सोचो कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हो, प्रोडक्ट तो कहीं पे अलग जगह पे मिलती है, बट यू गो ऑन ऑनलाइन, यू सिलेक्ट और यू अपलोड योर, यानी आप आपका खुद का कस्टमाइज डिजाइन वहां पे बनाते हो, वो चीज प्रिंट होके 1 वीक के अंदर आपके हाथ में आ जाती है। सो हाउ दिस इज पॉसिबल? पहले आई गेस 1960s और 80s में ऐसा होता था कि किसी को अगर कोई स्कूटर चाहिए होती थी तो उसका स्कूटर का डिलीवरी टाइम 6 से 8 साल होता था। यानी 2001 में किसी ने स्कूटर बुक किया तो उसको 2010 में मिलता था। जबकि हमारे पास वो उस लेवल का, आई वुड लाइक टू से ऑथोरिटी, या फिर उस लेवल का पावर आ गया है कि हम यहाँ से बैठे बैठे डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन से कलर का कार में इंटीरियर चाहिए, मुझे कौन से कलर का मोबाइल चाहिए, उसके ऊपर कैसे प्रिंट होनी चाहिए। सो ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दिस नेसेसिटीज एंड द टाइम टू गेट प्रोडक्ट गेट इनटू द हैंड्स ऑफ यूजर, हमको वो जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। अगर मैं हर चीज का, अगर मैं ऑर्डर दूंगा और किसी को कस्टमाइजेशन में बोलूंगा कि मुझे मेसी या रोनाल्डो का पिक्चर वाला कवर चाहिए, और वो कोई बंदा पेंट करने बैठेगा तो उसको 15 दिन लग जाएंगे। वही चीज अब प्रिंट होके 15 आवर्स में या फिर 15 डेज में वी आर गेटिंग इट। ओके, इन 5 डेज ऑल्सो वी आर गेटिंग कवर। तो आज प्रिंट करो 2-3 दिन में मिल जाता है। सो हाउ ऑल दिस थिंग्स गेट सो फास्ट? तो इसमें इंट्रोडक्शन होता है कंप्यूटर और आईटी का। जब हम अमेजोन पे कोई चीज सिलेक्ट करते हैं, उसका प्लेसमेंट होता है, वो चीज बन के, लेट्स से कि कभी कुछ बनी नहीं है लेकिन बहुत सारी चीजें कस्टमाइज होती है, तो वो बन के फैक्ट्री में जाके क्यूए क्यूसी चेक होके डिलीवर होके आपके पास आती है। तो वो जो पूरे प्रोडक्ट का साइकिल होता है वो बहुत कम हो गया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नीड्स there is an introduction of cloud and computer IT technologies into electrical. अब ये चीजें कैसे हो सकती है? सो बेसिकली आप कोई भी डेटा का एनालिसिस करके उस चीज को फास्ट या फिर उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। हेलो, so basically machine learning algorithms, all these things, all the things are working in background
to get you delivered what is best suitable for you. हम कभी कहीं पे कोई भी ऐड या कोई भी फेसबुक पे कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, तो वो सीधा हमारे इंस्टाग्राम में पॉपअप होने लगता है, फेसबुक में उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखने लगती है. सो बेसिकली देयर आर अल्गोरिदम्स व्हिच आर वर्किंग इन बैकग्राउंड. सो वैसी चीजें हम वो तो चीजें हैं कि जो मोबाइल में दिखते हैं, बट वैसी चीजें हमको अगर फिजिकल फॉर्म में चाहिए होती है, 3D प्रिंटिंग चाहिए होता है, कस्टमाइज ऑप्शंस चाहिए होते हैं, प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीजें बैकग्राउंड में कंप्यूटर और आईटी के रिलेटेड डेटा से ही काम करती है. सो द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज द मॉड्यूलर ऑटोनोमस इंटेलिजेंट प्रोडक्शन, जिसमें हम कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं. बिकॉज इन अगर आप प्रोसेस और इंडस्ट्री में जब इंट्रोड्यूस होंगे तब आपको पता चलेगा कि एक एक मिनट में लाखों प्रोडक्ट बनती है. तो आपको हर चीज पे कोई अलग अलग प्रिंट चाहिए होती है या अलग अलग कस्टमाइजेशन चाहिए होता है. तो हाउ इज इट पॉसिबल? सो इसीलिए डिफरेंट लेवल ऑफ ऑटोमेशन से हम क्लाउड में डेटा गैदर करते हैं, और क्लाउड में से वहां पे बहुत सारी एप्लीकेशंस डेवलप होती है कि जो प्री डिफाइंड वे में आपको उसका सिलेक्शन करके उन चीजों को आप तक या फिर प्रोडक्शन में उसको हेल्प करती है. सो बेसिकली द कंट्रोल लेवल ऑन ERP, आफ्टर ERP the 3 layers of autonomous manufacturing or production is get introduced. The most basic level is again control, then operation and management. These 3 layers are into the picture. जब हम कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑर्डर करते हैं तो मॉड्यूलर ऑटोनोमस प्रोडक्शन है, जहाँ पे रोबोट्स या फिर डिफरेंट लेवल्स के कन्वेयर्स सिस्टम, मशीन मिलिंग, टर्निंग प्रोडक्ट्स, मशीनरीज होती है, वो काम करते हैं. सो बेसिकली मॉड्यूलर ऑटोनोमस प्रोडक्शन, आप कहीं से मोबाइल पे से आपने कोई लेट्स से कि मोबाइल कवर का सिलेक्शन किया, तो वो पहले डिजाइन सिलेक्ट होके ये मशीन में जाता है, और मशीन में से बैठे हुए रोबोट उसके ऊपर से आपके मोबाइल के साइज से, लेट्स से कि 5T OnePlus 5T या एप्पल का कोई आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या आपके कोई भी मॉडल के हिसाब से, सैमसंग के मोबाइल के हिसाब से वो प्रोडक्ट वो लोग वहां पे बनाते हैं. उसके बाद वही रोबोट्स उसके ऊपर प्रिंटिंग और जो भी ड्राइंग्स होते हैं वो डिप्लॉय करते हैं, उसका कार्विंग करते हैं. अगर वो 3D प्रिंटेड से डेवलप हो रहा है तो उसका वापस डेवलपमेंट 3D प्रिंटिंग में होता है, और उसके बाद वो होता है ऑपरेशंस लेवल पे, जहाँ पे उसका प्रिंटिंग, कलर, QA QC होता है. वहाँ पे वो ट्रेस होता है कि कौन से प्लांट से निकल के कहाँ गया, कौन सी बैच में वो जाने वाला है, बैच में जाने के बाद वो कौन से डिब्बे में पैक होगा, वो पैक होने के बाद वो किस कुरियर में ट्रांजिट होके आप तक पहुंचेगा. सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इनटू द वर्चुअल वर्ल्ड, जो आपको पता नहीं होता. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ऑटोमेशन. सो वो OT लेवल पे, यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी लेवल पे होता है. जैसे हमारे पास IT है, विच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. द सेम वे इन इंडस्ट्री इट इज अ ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, क्योंकि IT जो हम यूज करते हैं मोबाइल्स में, गूगल में सर्च करते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग. बट इन रियल वर्ल्ड, जब आप, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आपको कोई मोबाइल कवर चाहिए कस्टमाइजेशन वाला, तो उसमें ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी आता है. बेसिकली अ टेक्नोलॉजी विच इज डूइंग द ऑपरेशन, एंड IT मीन्स अ टेक्नोलॉजी विच इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन. सो रियल वर्ल्ड में IT होता है, बट इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री में उसको ऑपरेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं. सो OT का इंट्रोडक्शन होने के बाद ये सारा क्लाउड, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन होता है. और उसके बाद वही चीज नॉन OT क्रिटिकल फंक्शंस और बैकएंड होते हैं, जो एप्स होते हैं जो उनको मैनेज करते हैं, उनके थ्रू आगे के फेज में जाता है. सो बेसिकली ऑटोमेशन का नेक्स्ट फेज है ITL कंप्यूटर में, वी कॉल इट डिजिटलाइजेशन. हर चीज को डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट करना. So basically anything which is non-physical, but you can derive it from
फिजिकल वर्ल्ड टू वर्चुअल वर्ल्ड, इट कॉल्ड इट अ डिजिटलाइजेशन. हर चीज का डिजिटल फॉर्म में उसका अडेप्टेशन. सो द न्यू introduction or the new phase of industrial automation is digitalization, right? Is there any question regarding this? Okay, so I'm going further now. So how the whole cyber physical world or cyber physical ecosystem gets generated, यानी ये जो मैंने मोबाइल केस कवर का एग्जांपल दिया वो कौन से फेजेस से गुजर कर आपके हाथ में आता है. So the basically the product design is there, production and planning is there, production engineering there, execution is there, and service is there. This is the digital model of which is always up to date and always extended on entire products life cycle. यानी ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसका सर्विस तक का जो लाइफ है उसका एक डिजिटल मॉडल है. So same things are happening into the virtual world. So in physical and in digital model जो हमारा ये पूरा प्रोसेस है, लेट्स से कि मोबाइल कवर बनाने का प्रोसेस है, वही चीज हम कंप्यूटर पे डेवलप कर सकते हैं. लेट्स से कि अपने पास कैड का सॉफ्टवेयर होता है, कैड 2D 3D. सो बेसिकली हम वही चीज फिजिकल फॉर्म में होती है उसको हम वर्चुअल वर्ल्ड में बनाते हैं. फिर कैड के मॉडल के थ्रू हम उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बेसिस पे जो कैड में हमने डेवलप किया है वर्चुअल वर्ल्ड में उसी चीज का रेप्लिका हम लोग बनाते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, विच इज योर फिजिकल मोबाइल कवर. सो वही चीज पूरा का पूरा साइबर फिजिकल सिस्टम होता है जिसमें ये पूरे मॉडल का डिजिटल मॉडल क्रिएट होता है और उसका मैन्युफैक्चरिंग होके मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है. और उसमें क्या क्या चीजें होती है. सो बेसिकली उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं. इफ यू सी द मोबाइल, सो मोबाइल इज ऑलवेज हैविंग सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेटिक्स यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम. उसमें मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ऑटोमेशन तो ऑब्वियसली होता ही है, HMI होता है, उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी होता है और मेंटेनेंस होता है. जब आप कोई भी साइबर फिजिकल वर्ल्ड या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में एंटर होते हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन सिक्योरिटी का आता है और सेफ्टी का आता है. कोई आपका लोकेशन ट्रैक कर रहा है, कोई आपका स्टेटस चेक कर रहा है, कोई आपकी लेट्स से वॉइस कमांड से कोई चीजें दूसरे ऑपरेट कर रहा है, तो वो सारी चीजें सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत आती है. तो पहले जब ऑटोमेशन फैक्ट्री में इंट्रोड्यूस होते थे 2010 के आसपास और उससे पहले, तब उसका फिजिकल वर्ल्ड या डिजिटल वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता था और उसी वजह से सिक्योरिटी और सेफ्टी का कभी पिक्चर में ही नहीं आता. जो भी सेफ्टी होती थी वो फिजिकल होती थी. यानी अगर प्लांट पे कोई माल फंक्शनिंग किया, कोई ने किसी रोबोट ने कुछ माल फंक्शन किया तो उसकी वजह से वहां पे जो लेबर है उनको हार्म नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए सेफ्टी होता था. लेकिन अब जब चीजें ही डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल मॉडल में जा रही है तो डिजिटली भी उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी होना चाहिए. तो उसकी वजह से जहां जहां डिजिटलाइजेशन का टॉपिक आता है वहां पे हर बार सेफ्टी और सिक्योरिटी आता है. जिस तरीके से हमारे हर बार कन्वर्सेशन चलती रहती है कि विच इज अ फार बेटर इकोसिस्टम, इज इट विंडोज, एंड्रॉइड और एप्पल. So the same way we are defining the system on based on their security. Let's say कि एप्पल बहुत सिक्योर है तो वो हम कौन से बेसिस पे उसको जज कर रहे हैं. So the same thing happening into the digital world but on operational level, जहाँ पे प्रोसेस या इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन होता है वहाँ पे सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेटा होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं, बहुत डिजाइन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो कॉम्पिटिटर्स को नहीं जानी चाहिए. तो उस टाइम पे सिक्योरिटी पिक्चर में आती है और सेफ्टी पिक्चर में आती है. सो बेसिकली जो चीजें फिजिकल लेवल पे होती है
वही चीजें अब डिजिटल लेवल पे होती है। आप कोई भी चीज का 3D प्रिंटिंग कर सकते हो, आप कोई भी चीज का 3D मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो. So all the 3D manufacturing are digital models. We give some data to machines, and on the based of those data and information, they create one product or manufacture a product. So basically, from digital world to physical world, we are creating some many systems. Okay. Is there a question in related to this topic? So I'm moving further now. This is the one picture of how the things work, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं मोबाइल से और कंप्यूटर से, उसके ऑर्डर्स आते हैं, एंड देन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग or on the process field it gets manufactured, and because through supply chain it got delivered to the people. This is the mass customization. जैसे different products को customize करते हैं, so all these things are coming from mobile or cyber world, from where it gets manufactured. This is the digitalization slide, which shows the entire, I would like to say, product life cycle management. कैसे कोई चीज का कोई फैक्ट्री लेवल पे और मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कैसे डिजिटलाइजेशन कनेक्ट करता है. सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स और पीपल in electrification and automation and digitalization, the next phase of automation is digitalization. So the same things which makes it happen are here: sensors, computing power, storage capacity, data analytics, and networking. So on the base, these all five are pillars for digitalization, right? The same is here: value addition in industry, cloud-based analytics and ecosystem, which is a computer IT related field, and this is the physical field where things get delivered. So now, previously there was only one field. Now the entire system gets connected with each other, and now they are connecting the real cyber physical systems. Now, this is a slide which shows how many industries are there. यानी जब हम इंजीनियर बन के बाहर निकलते हैं तो कितने टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं जो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस देखते हैं. बेसिकली दिस ऑल आर द फील्ड्स where you get introduced, and all these are get impacted by the automation. So ये सारी इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन यूज होता है, और उसकी वजह से ही हमको जो प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलते हैं वो मिलते हैं. बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एनी इंडस्ट्री. वन इज प्रोसेस इंडस्ट्री एंड अनदर इज डिस्क्रीट इंडस्ट्रीज, और उनके बीच की जो इंडस्ट्रीज होती है दोज आर हाइब्रिड इंडस्ट्रीज. बेसिकली प्रोसेस इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज वेयर एनी फ्लूइड गैस आर इन्वॉल्व. यानी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर कोई मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी लिक्विड या गैस होती है तो वो उनका प्रोसेसिंग और उनका मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रोसेस इंडस्ट्रीज बोलते हैं. और अगर कोई चीजें मैन्युफैक्चर्ड होके फिजिकल फॉर्म में आती है और in solid form, so we call it a discrete industry.
बेसिकली केमिकल्स जो प्रोसेस होते हैं, वाटर और वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ऑयल एंड गैस के रिग्स होते हैं, जो अपन बॉम्बे हाई या ओएनजीसी के जो बड़े बड़े ऑयल एंड गैस के रिफाइनरीज है वो होते हैं। देन मिनरल्स, जहाँ पे माइनिंग और मिनरल्स होते हैं, जहाँ पे कोल का माइनिंग होता है, ऑर्स का माइनिंग होता है, मेटल का मिनरल्स का माइनिंग होता है, उनको हम मिनरल्स इंडस्ट्री में कंसिडर करते हैं। मरीन इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर इनटू द ओशन एंड सीज, जहाँ पे मरीन लेवल पे यानी ओएनजीसी को अगर कहीं से पेट्रोल ऑयल निकालना है तो दे विल गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू द मरीन इंडस्ट्रीज, तो वो होते हैं। देन पावर एंड यूटिलिटीज, बेसिकली दिस इज द प्योर फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड यूटिलिटीज, जहाँ पे पावर का जनरेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनका पूरा का पूरा वैल्यू चेन इंट्रोड्यूस होता है। तो पावर एंड यूटिलिटीज आर ऑल्सो फील्ड वेयर ऑटोमेशन इज देयर। देयर आर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, pharmaceutical, to manufacture anything related to pharma, यानी फिर वो कोलगेट का एक ट्यूब हो या फिर डिस्प्रिन या क्रोसिन हो, वो सारा फार्मास्यूटिकल में मैन्युफैक्चर होता है। देन फाइबर्स, ऑल द प्लास्टिक्स एंड पेपर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनटू फाइबर इंडस्ट्रीज। फूड एंड बेवरेजेस, बेसिकली जो मिल्क से लेके जो बिस्किट्स होते हैं वहां तक की सारी इंडस्ट्रीज are fall into food and beverages. Then new, because of electrical vehicles and other electrical related new industries, batteries manufacturing production are also get introduced, तो उनका भी नया growing field है। Then tire manufacturing, because automobile itself is a very big industry, one of the biggest industries in the world, so tire is also there. Electronics industry, because of digitalization, everything which we use and we get connected is now electronic industry. Wind and turbine industry, additive manufacturing, so all the 3D printing and digitally configured products are goes into additive manufacturing, so उनका भी अभी इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। देन एरोस्पेस इंडस्ट्री, मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज एंड क्रेन्स, जो सी शॉल पे लगती है वो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, वेयर कार एंड अदर ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। इंट्रा लॉजिस्टिक्स, ऑल द Amazon and other companies, Flipkart, they all are called intralogistics company because their entire company runs on an intralogistics. Basically, intralogistics are logistics companies which are working for storage and retrieval system, यानी कोई भी चीजों का डिलीवरी और सप्लाई चेन इंट्रालॉजिस्टिक्स कंपनी देखती है। सो एयरपोर्ट पे कन्वेयर्स है, देन ऑयल और कोल के जो बड़े बड़े कन्वेयर्स है, 20 किलोमीटर्स लॉन्ग कन्वेयर्स, दे ऑल फॉल इनटू इंट्रालॉजिस्टिक्स। एंड देन रोबोटिक्स, रोबोटिक्स में रोबोट्स का इंट्रोडक्शन होता है, 2D 3D रोबोट्स, स्कारा रोबोट्स। सो ऑल दिस इंडस्ट्रीज आर the outputs which we are seeing right now. यहाँ पे सभी जगह पे आपको ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन दिखेगा और ये सारी इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन की वजह से ही चल रही है, वैसा आप कह सकते हैं। Then I guess this is the last slide which are having two different videos. One is for manufacturing of car, कि फ्यूचर में जो अभी कार मैन्युफैक्चर हो रही है तो वो किस तरीके से ऑटोमेशन का यूज करते हैं और कैसे डिजिटलाइजेशन का यूज करके उनको मैन्युफैक्चरिंग में लाते हैं। एंड द अनदर वन इज द प्रोडक्ट विच वी कॉल इट अ कॉमोडिटी, शूज। जैसे हम मोबाइल कवर को कस्टमाइज कर सकते हैं, वैसे हम शूज जैसी चीजें कि विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स in terms of manufacturing and in terms of customization, उनको कैसे automation से बनाते हैं। So I am right now introducing this video only.
Okay. Is this video audible? No, sir, not audible and not also visible. Uh-huh. Now? No, no, sir. Now? No, sir. Screen sharing. So right now, sir, you have shared only PPT, not on another application. But So you have to select other application for video sharing. Oh, I have just clicked on. Right now, is it showing PPT? Yes, only PPT. Plus the future of manufacturing. Okay. Okay, stop. Just a second. Okay, it is on Facebook, that's why. Now? Yes, sir. You can see. Is it audible? No, sir, it's not audible. Now? No, sir. એટલે વિડિયો દેખાય છે પણ ઓડિયો નથી આવતો એવું. Ha. Sir, you can share with me video link. Then after I will share with students. Okay. So can I put it in a chat box? Yes, sure.
hello. Hello. Yes. હા, share કર્યો છે. Okay. So thanks everyone for joining with us. Okay. So thanks also Mr. Alok Deshmukh sir to give us a valuable time. Thank you. Thank you. Hello. Yes, sir. Yeah. So I hope that maybe this is very high level of automation which I have introduced, but when you will be there into the when you become an engineer and go into different industries, you will see all these things happening around you. So I would like to say best of luck, and in case of any help or anything of related to engineering or automation, you can contact me. Digesh sir will be able to share my contact with you. So anything query related to this, also you can directly call me or send email to me. I will be very happy to help you. Okay. Thank you. Yeah. Welcome.